Good morning children, welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I am Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. Our students have been placed in big companies, big hospitals, and they are very successful in their lives. So the reason being they were very obedient, very disciplined, and they were very regular for all the classes. They gave all the tests. If I have to say that what are all the points to get success as per the present scenario, so there are 4 main strategic things that you need to do. That is, watch all the videos. Second is attend all the live classes. In live classes we are doing lots of details about a particular topic with lot of problem solving. Lot of conceptual questions are being discussed, and the way you have to give answers in your school exam, the way you have to practice the questions, implement the concepts from the point of view of competitions, all this is being discussed in the live classes as well as physical classes. So videos, then all the live classes, all the physical classes, then give all the tests, that's it. The entire concept will become very strong. Although I do believe that 11th is bit tough, the graph is steep for 11th class. You need to follow a particular guideline and then keep on stepping ahead in the ladder daily. One step in the entire ladder. Daily you have to step up. When you step up daily, regularly you are practicing things, regularly you are giving time to the subject, nothing can put you back. You will be there acquiring your destiny. So we were doing about some basic concepts of chemistry, and today we are going to just sum up certain things. As such, we have covered almost all the topics. To sum up for this chapter, like mole fraction or certain things which are related with normality and molarity, that we will be taking up, and then in the next video lecture we can go ahead with the next chapter. So in some basic concepts quite a lot of things we have done. First, इसमें हमने normality last class में किया था. The thing which was left was about mole fraction. A bit of stoichiometry also we have done. More questions we are doing in the live classes. Mole fraction का मतलब क्या है? It is fraction of the moles of a component in the mixture. जैसे solution किससे बनता है? Solution is equal to solute plus solvent. जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? Solution. तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को डिनोट करते हैं N से, and solute means B. Here I am taking it up as B, and solvent के लिए I am taking it up as A. So ये moles of solute हो गए, ये moles of solvent हो गए. तो NB plus Na is what? Total moles of the solution. So how many moles of A is present in the total moles? That will be mole fraction of A. How many moles of B is present in the total moles of the solution? That will be called as mole fraction of B. तो mole fraction को किससे डिनोट करते हैं? XB. XB हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB. यदि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो XA क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस NB. डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में सेम है, जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिपेंड करता है कि आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है. एंड इसके अलावा आपको याद रखना है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? सिंपली मोल्स निकालना है और डिवाइड करना है, ऐड करना है, दैट्स इट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन. सपोज आपके पास है 10% इथेनॉल plus 25% water plus 15% सोडियम क्लोराइड. ये 3 कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन है. इसमें आपको निकालना है
मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल मतलब ये इसमें सॉल्वेंट हो गया थोड़ा सा, ये दिस पार्ट इज द सॉल्यूट, दिस पार्ट इज ऑल्सो द सॉल्यूट पार्ट। तो 10% इथेनॉल मतलब 10 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो 10 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल के लिए आप कैसे निकालोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास पहले निकालना होगा। मतलब मोल्स ऑफ इथेनॉल विल बी 10 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 16 दैट इज 46, मीन्स ये हो गया 10 अपॉन 46, ये मोल्स ऑफ इथेनॉल हुआ। ऐसे ही हमको निकालना है मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज 25 अपॉन 18। फिर आया मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया 15 अपॉन 58.5 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। अब जैसे हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन तीनों के मोल्स को ऐड करना है, मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो सबकी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है, दैट इज़ 10 अपॉन 46 अपॉन 10 अपॉन 46 प्लस 25 अपॉन 18 प्लस 15 अपॉन 58.5। ये है सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग मोल फ्रैक्शन क्वेश्चंस, जहाँ पे परसेंटेज गिवन है या ग्राम्स में गिवन है और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मोल फ्रैक्शन से आता है वो है कि सपोज आपके पास डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन दिया है और उससे आपको मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। दैट इज़ अ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो बहुत ट्रिकी होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सपोज आपको गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 in water is 0.40 और डेंसिटी हम फॉर इजी कैलकुलेशन ले लेते हैं, एग्जैक्ट डेंसिटी हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर्स, ये भी पॉइंट आपको बताया हुआ है। अब इस मोल फ्रैक्शन से हमको मोलारिटी और मोलालिटी, ये दो चीज़ें पहले निकालेंगे। मोलारिटी के लिए आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलालिटी के लिए चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। सो सबसे पहले क्या चीज़ आनी चाहिए माइंड में कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो भी किसका, सॉल्यूशन का। यहाँ पे क्या आना चाहिए कि आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है तो पहले सॉल्यूशन पता होना चाहिए, सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए, उससे फिर आप सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो। तो लेट अस नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन। 0.40 को हम लिख सकते हैं 40 अपॉन 100, मीन्स 40 मोल्स ऑफ H2SO4 है इस सॉल्यूशन में एंड 60 मोल्स ऑफ वाटर है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 40 मोल्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या 60 मोल्स ऑफ वाटर। अब हमको देखना है कि वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले मास निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन का, मीन्स मास ऑफ H2SO4 प्लस मास ऑफ वाटर विल गिव यू मास ऑफ सॉल्यूशन। सो इसके लिए हम करेंगे 40 मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो H2SO4 का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2SO4 विल बी 40 इंटू 98। ऐसे ही हो जाएगा मास ऑफ वाटर, ये हो जाएगा 60 इंटू 80। ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशंस नहीं करते हुए हम इसको ले रहे हैं x और इसको ले रहे हैं y, ताकि आपको एक तरीका पता चले कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा ये
मास ऑफ H2SO4 प्लस मास ऑफ वाटर ऐड करोगे। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3920, बिना कैलकुलेशन के ये क्वेश्चन होगा नहीं, और ये 16 हो गया है, सो ये हो गया 8 10 1080, ये आ रहा है इसका 16 to 18। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे इसमें, दैट इज टोटल मास कितना हो जाएगा 3920 प्लस 1080। ये आप ध्यान रखोगे कि मास ऑफ H2SO4 है, ये मास ऑफ वाटर है, मतलब ये सॉल्वेंट का मास है। सो जल्दी से इसको ऐड करो। 1080 ये हो गया 5, सो यू आर गेटिंग दिस एज 5000। ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। जब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी। सो 5000 अपॉन 1.5, ये आ जाएगी इसका वॉल्यूम। मोल्स हमारे पास हैं, वॉल्यूम हमारे पास है, तो मोलारिटी निकल जाएगी। सो मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोल्स कितने हैं 40, वॉल्यूम मोल्स अपॉन वॉल्यूम मीन्स ये हो गया 1.5 अपॉन 5000 इंटू 1000, ये आ जाएगा मोलारिटी। सिमिलरली अगर मोलालिटी कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन से, तो मोलालिटी के लिए आप क्या करोगे, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी है हमारे पास, तो 60 मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है, 40 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1080 मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये आ जाएगी इससे मोलालिटी। ठीक है, सो इन दिस वे जब मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है उससे आप मोलालिटी निकाल सकते हो। नॉर्मेलिटी के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताया था, दैट इज नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। H2SO4 है तो H2SO4 में n फैक्टर कितना होगा 2, बेसिसिटी 2 है। सो जो भी मोलारिटी आपकी आ रही है, सपोज x आई, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगी नॉर्मेलिटी। अगर इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है तो आप निकाल सकते हो स्ट्रेंथ, इक्विवेलेंट वेट, उससे भी वही आंसर आएगा जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम जल्दी से और करेंगे, दैट इज सपोज 10% ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज सॉल्यूशन वेट पर वॉल्यूम पे है, उसमें आपको निकालना है मोलारिटी। वेट पर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 10% बाय वेट पर वॉल्यूम। ये दिया है 10% ग्लूकोज C6H12O6, इसमें भी डेंसिटी आप ले लो से 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, और ये है वेट पर वॉल्यूम। वेट पर वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 10 grams of glucose is present in 100 milliliters of solution। ये आप बोलोगे 10 grams of glucose is present in 100 milliliters of solution। अब मोलारिटी निकालनी है, ऑलरेडी वॉल्यूम है हमारे पास, तो मोल्स निकालोगे, मोल्स विल बी 10 अपॉन 180 इसका मोलिकुलर मास है। सो मोलारिटी विल बी, ये मोल्स हो गए, मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000 मीन्स 10 अपॉन 180 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000, ये हो गई मोलारिटी। यदि इसमें आपको मोलालिटी भी कैलकुलेट करनी है तब हमको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिकॉज वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा मास में। तो इन दैट केस आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मीन्स ये हो जाएगा 100 इंटू 1.5,
दैट इज़ हाउ मच 150 ग्राम्स क्या हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10. सो WA कितना हो जाएगा 150 माइनस 10 दैट इज़ 140 ग्राम्स. ये अपने पास नोट करो. मास ऑफ सॉल्वेंट 140 है. अब आपको मोलालिटी निकालना है. मोलालिटी मतलब मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000. मोल्स इस क्वेश्चन में कितने हैं 10 अपॉन 180 इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट है 140 इंटू 1000. ये जब आप सॉल्व करोगे तो इससे आ जाएगी मोलालिटी. सो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है. सो नेक्स्ट video lecture में we will be discussing about the second chapter. We are going to start with second chapter, that is atomic structure. So I do hope you have liked the lecture, you could understand the concepts. So keep on liking the channel, subscribe the channel and press the bell icon. Till then, thank you so much.